کہ ہم اپنے دفتر میں موجود تھے اور ہم چونکہ شہر میں امن و امان کی جو صورتحال ہوتی تھی، قتل، اغوا، یعنی کوئی اچھی خبر ہم نہیں لکھتے تھے، روزنامہ جسارت میں بری خبریں لکھتے تھے، تو ہمیں ہمارے بعض ذرائع سے یہ اطلاع ملی کہ کلفٹن میں جو پولیس کلب ہے، جہاں ڈی آئی جی کراچی بھی رہائش پذیر ہے، اور جو سڑک پر جو لبِ سڑک جو گھر ہے وہ ڈی آئی جی کراچی ہاؤس کہلاتا ہے، اور اس وقت ڈی آئی جی کراچی جو تھے وہ شعیب صڈل تھے، جو ڈاکٹر شعیب صڈل، جو پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، اور وہ بڑے ایک طریقے سے اسپیشل ٹاسک لے کر آئے تھے، ان کا گھر بھی وہی ہے۔ تو ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ جی ڈی آئی جی کراچی کے گھر پر فائرنگ ہو رہی ہے، یہ پولیس کے ذرائع سے اطلاع ملی۔ تو ہم اپنے بعض دوستوں کے ساتھ، ساتھی رپورٹرز کے ساتھ، میں اگر اسپیشلی اس کا نام بتاؤں آپ کو، روزنامہ امن کے رپورٹر ہیں ارشاد، وہ اور ہم ایک ساتھ ایک موٹر سائیکل پہ وہاں پہنچے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں فائرنگ کے واقعات تھم چکے تھے اور ایک سراسیمگی کا عالم تھا، مطلب ایک جیسے کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو کے چکا ہے۔ وہاں پولیس کے لوگ جو تھے وہ وہاں موجود تھے، بجلی بند تھی، اور جو کلفٹن یہ جو دو تلوار کی جو وہاں پولیس چوکی پر جو ہے وہ پولیس کی خاصی نفری تھی۔ اس وقت جو ہے ایس ایس پی کراچی جنوبی واجد علی خان درانی بھی موجود تھے، اور ان سے ہماری اچھی یاد اللہ تھی، لیکن ہمارے ہاتھ ہلانے کو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھے۔ تو وہاں ہم سے پہلے کچھ فوٹوگرافرز پہنچ چکے تھے اس جگہ پر، اور پولیس نے ان فوٹوگرافرز سے کیمرے چھین لیے۔ تو ہم چونکہ جو کراچی یونین آف جرنلسٹ اور صحافیوں کی جو یونین ہے اس کا حصہ بھی رہے تھے، تو جن فوٹوگرافرز سے پولیس نے کیمرے چھین لیے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں پولیس نے ہم نے آگے بڑھ کر اس وقت جو ذمہ دار جو پولیس والے تھے، اس میں خاص طور پر ایس ایس پی کراچی جنوبی واجد علی خان درانی سے ہم نے کہا بھائی یہ جو واقعہ جو بھی ہوا ہے لیکن کیمرے تو واپس کرائے ہمارے۔ تو ان کے کہنے پر جو ہمارے جو پولیس نے جو کیمرے فوٹوگرافرز سے لے لیے تھے وہ واپس ہوئے، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کے یہ اندازہ ہوا کہ یہ پولیس اور مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کے درمیان ایکسچینج آف فائر ہوا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ اسی عرصے میں یہ دیکھا گیا، اور ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بتایا وہاں موقع پر، کہ یہ جو پولیس کی گاڑی جو جا رہی ہے اس میں مرتضیٰ بھٹو کو زخمی حالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، جب اس طرف کو دیکھا تو اگر آپ اس جگہ جائیں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، چورنگی پر کھڑے ہو کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ جگہ صاف نظر آ جائے گی جہاں اب تو ایک بلند و بالا عمارت بن گئی ہے، کبھی مڈ ایسٹ ہاسپٹل ہوا کرتا۔ وہ جو اسپتال تھا وہاں وہ جو گاڑی گزر کے گئی تھی وہاں رکی، اور اس کے بعد پھر آگے چلی گئی۔ پھر جب ہم اس اسپتال کے پاس پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ یہ پولیس کی گاڑی میں مرتضیٰ بھٹو کو لا کے اس اسپتال کے سامنے فٹ پاتھ پہ اتار کے وہ گاڑی آگے چلی گئی۔ مرتضیٰ بھٹو فٹ پاتھ پر زخمی حالت میں موجود تھے، اور وہاں اس وقت ڈپٹی کمشنر کراچی جنوبی عارف الہی صاحب اب تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے، آخری بار ان سے جب رابطہ ہوا تھا تو وہ پی این ایس سی میں کوئی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن۔ عارف الہی وہاں موجود تھے، اور مرتضیٰ کے ساتھ ایک دو لوگ کچھ ان کے جو وہ موجود تھے، اور ہم وہاں جب پہنچے تو مرتضیٰ بھٹو زخمی حالت میں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر بیٹھے۔ پھر مڈیس اسپتال سے ایک اسٹریچر لے کر آئے باہر، اور بدقت تمام، یعنی مرتضیٰ بہت جاندار اور بہت قوی الجثہ آدمی تھے ماشاءاللہ، ان کو اٹھا کے اسٹریچر پر جب ڈالا گیا، اور اسٹریچر کو جب گھسیٹ کے اندر کی طرف لے گئے، مڈیس اسپتال کے باہر یعنی فٹ پاتھ کے بعد جو گلی کہہ لیجئے یا جو صحن کہہ لیجئے، اس میں
ग्रिल लगी हुई थी, वो ग्रिल बंद होना शुरू हो गई। और जब वो ग्रिल बंद होना शुरू हो गई तो वो जो अस्पताल के जो जिम्मेदार थे वो ये कह रहे थे कि भाई इसको यहाँ से ले जाएं, ये पुलिस केस है, ये गोली लग के ज़ख्मी हुआ है, ये हमारे यहाँ पुलिस केस नहीं लिए जाते, आप इन्हें सरकारी अस्पताल लें। तो एक साहब जो थे, जो हमारे साथ थे, गालिबन मुर्तज़ा की पार्टी के ही कोई साहब होंगे, हम उन्हें नहीं जानते, उन्होंने बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, जज्बाती अंदाज में उस ग्रिल बंद करने वाले को सिंधी ज़बान में कहा कि दिस तो सही है केरा, देख तो सही है कौन, ये मीर मुर्तज़ा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फर्जंद हैं। ये जब उसको बताया गया तो उसने रेलिंग जो है, जो गेट वो बंद कर रहा था, वो खोल दिया। उसने कहा आ जाएं, और फिर मुर्तज़ा भुट्टो का स्ट्रेचर घसीटते हुए लिफ्ट के पास गए और लिफ्ट के ज़रिए वो दूसरी मंजिल पर गए। अच्छा, मैं चूँकि इसी हल्ले में उनके साथ था और मैं भी अस्पताल में, लेकिन वहाँ जाके जब दूसरी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब मुझे सहाफ़ी की हैसियत से यहाँ शायद नहीं रुकने दिया जाएगा। तो मैंने अपनी ख़बर के लालच में वहाँ एक जो सफ़ेद कोट, जो डॉक्टर्स का कोट होता है, वो मैंने पहन लिया, और स्टेथोस्कोपिक जो अक्सर डॉक्टर्स के गले में होता है वो मैंने गले में डाल लिया। वहाँ जो डॉक्टर पहले से मौजूद था वो कोई बहुत सीनियर डॉक्टर नहीं था, मतलब मैं समझता हूँ कि वो कोई बहुत जूनियर डॉक्टर था। और वो जो अस्पताल था वो भी कोई मुतहर्रिक अस्पताल नहीं था, वहाँ ओपीडी नहीं थी। बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि मिड ईस्ट अस्पताल जो है वो तो एक ऐसा अस्पताल था जहाँ ऑपरेशन के बाद या जो बड़े लोग थे वो छुट्टियां गुजारने के लिए बीमारी का बहाना करके उस अस्पताल में आके लेट जाते थे, आराम करते थे। तो जब मुर्तज़ा भुट्टो आईसीयू वाले कमरे में, वहाँ ओटी भी नहीं था, ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था, जब वो वहाँ ले जाया गया तो स्ट्रेचर से मुर्तज़ा यानी इतना होश में था और इतनी उसकी, जिसे कहना चाहिए, हिम्मत थी कि वो स्ट्रेचर से अस्पताल के बिस्तर पे खुद मुंतकिल हुए। और उसके बाद यानी मेरा ख्याल है 40 या 50 मिनट तक वो वहाँ मौजूद रहे। गोली चूँकि उनके गले में लगी थी और उस गले की गोली की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे, और उसका नतीजा ये निकला कि 40 या 45 मिनट बाद जब, और ये भी एक अजीब, एक फिल्मी सा मंज़र था कि जैसे ही गिनवा बीबी उस आईसीयू में दाखिल हुई और मुर्तज़ा भुट्टो पर बेहोशी तारी हो गई, और मुर्तज़ा भुट्टो जो बैठे हुए थे बिस्तर पर वो लेटते चले गए। और वहाँ गिनवा बीबी ने जिस तरह की फिर जो, जिसे कहना चाहिए कि एक दुख और अलम और कर्ब का जिस तरह इजहार किया है, वो हमने दूसरे दिन अपने अखबार में उसको सारी चीज़ें छापी भी हैं। और अगर मैं उस वक्त उस दिन का रोज़नामा जसारत का आप जायज़ा लें और देखें तो वो सारी सूरत हाल जो मैं अब उसमें से कुछ बयान कर पा रहा हूँ और कुछ शायद मुमकिन है कि स्लिप भी हो रही हो, वो सारी कैफियत हमने अलग अलग बहुत तफसील के साथ, क्योंकि उस दिन की सबसे बड़ी खबर ये थी, वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भाई और एक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फर्जंद मुर्तज़ा भुट्टो, जो उस वक्त सिंध असम्बली का रुकन भी था, बेनज़ीर का भाई था, एक वज़ीर आज़म का बेटा, एक वज़ीर आज़म का भाई और सिंध असम्बली का रुकन पुलिस के हाथों इस तरह से कत्ल कर दिया गया था। और अकेला नहीं, कुल 8 लोगों के उस वक्त कत्ल हुए, या 8 लोग बाद में उन्हें कहा गया कि जी शहीद हुए। उसके कत्ल के बाद बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड से एक तहकीकाती कमेटी, मतलब बरतानवी पुलिस के नामवर सुराग रसानों को वहाँ बुला के उनसे तहकीकात करवाई गई। पाकिस्तान की अदलिया में एक नामवर और शख्सियत नासिर असलम ज़ाहिद की सरबराही में एक कमीशन कायम किया गया। उस कमीशन ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन रखी होंगी, ज़ाहिर है। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए, और लेकिन इब्तदाई तौर पर इस पूरे वाक़े को एक पुलिस मुकाबले का नतीजा बताया गया, और क्लिफ्टन के SHO
इंस्पेक्टर हक नवाज सियाल की मुद्दईयत में एक FIR दर्ज की गई, जिसमें ये बताया गया कि मुर्तज़ा के साथियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें ये लोग मुर्तज़ा भुट्टो समेत और उनकी पार्टी के एक और लीडर आशिक जतोई समेत 8 लोग जो है वो मारे गए। अच्छा, एक और कोइंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि आशिक जतोई जो मुर्तज़ा भुट्टो के साथ जिस गाड़ी में मुर्तज़ा भुट्टो मौजूद थे, वो गाड़ी आशिक जतोई चला रहे थे। आशिक जतोई के करीबी रिश्तेदारों का वो अस्पताल था जो मेडिस हॉस्पिटल था। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि वो उसको वहाँ ले गए हों भरोसे के लिए, एतबार के लिए। हम ये समझते हैं कि अगर मुर्तज़ा भुट्टो को किसी मुतहर्रिक अस्पताल ले जाते या ऐसे अस्पताल ले जाते जहाँ अवामी इलाज की सहूलत मौजूद होती, गालिबन अगर उन्हें जिना अस्पताल ले जाते, उन्हें सिविल अस्पताल ले जाते, उन्हें अब्बासी अस्पताल ले जाते जहाँ OPD मौजूद होती, जहाँ रोज़मर्रा यानी डॉक्टर पट्टी करने वाला डॉक्टर होता, शायद मुर्तज़ा की जान बचाई जा सकती थी, बच सकते थे। मुर्तज़ा को लगने वाले ज़ख्म जो थे वो 4 गोलियों के उन्हें ज़ख्म थे, जिनमें से 3 गोलियां जो थी गैर मुहलिक थी। 3 गोलियां जैसे लगी यानी न लगी। एक गोली जो उनके गाल पर लगी थी और हलक चीरते हुए रगे जान काटते हुए निकल गई, तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो गोली इस एंगल से लगी कि जैसे गोली मारने वाला ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब थी। और गुमान गालिब ये था कि क्योंकि बाद में क्राइम ब्रांच ने तहकीकात की और तहकीकात के नतीजे में उनकी गाड़ी में तार बांध के उसकी पैनलिंग, उसको पैनलिंग कहते हैं, पैनलिंग करके देखा गया तो मुर्तज़ा को जो गोलियां लगी थी और उसमें जो मुहलिक उन्हें ज़ख्म लगा था वो उस पैनलिंग में नहीं आया। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि मुर्तज़ा अंदर से गोली चलने के नतीजे में जो हुआ वो किसने गोली चलाई, क्या हुआ, बहरहाल इस बात की तहकीकात नासिर असलम ज़ाहिद की सरबराही में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा, उसके बाद जो राय हैरिज की सरबराही में जो स्कॉटलैंड यार्ड से जो टीम आई थी उसकी जो रिपोर्ट ने जो कुछ कहा, और इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो अब ये एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में बाद में फिर एक और FIR दर्ज हुई, फिर एक और FIR दर्ज हुई, उसकी तहकीकात हुई। उस तहकीकात में यानी वो जो पुलिस वाले जिस ऑपरेशन में मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों का कत्ल हुआ, उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़, SSP जनूबी के ख़िलाफ़, DIG कराची के ख़िलाफ़, IG सिंध के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस के DG इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। ये लोग गिरफ़्तार भी हुए, ये लोग जेलों में भी रहे। मुकदमा चला नहीं चला, अदालतों में क्या हुआ ये तो अदालत ही ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन ये तमाम जो मुल्ज़िमान थे ये बरी हो गए। बरी होने के बाद पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत में नवाजे भी गए, तरक्कियाँ भी हुई, ये सारे मामले हुए। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का मुकदमा जो है वो एक ऐसे दोराहे पर आकर ख़त्म हो गया कि ये नहीं मालूम कि उनको वो पुलिस मुकाबले में मारे गए या उन्हें कत्ल किया गया। एक साजिश थी, एक मंसूबाबंदी थी, क्या था ये बात तो अगर तहकीकात करार वाकई होती तो शायद पता चल सकता था, लेकिन ये नहीं पता चला। फिर इस वाक़े का एक और किरदार था हक नवाज सियाल जो SHO क्लिफ्टन था। वो इस यानी मुर्तज़ा के वाक़े के ठीक एक हफ्ते बाद अपने घर में, उनका घर जो है वो पुलिस लाइन गार्डन में उनका जो सरकारी घर था, वहाँ वो पुरस्रार हालात में मुर्दा पाए गए। सरकारी तौर पर यह बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी की है, और गैर सरकारी तौर पर हेयरसे की बुनियाद पर यह कहा गया कि उन्हें कुछ लोगों ने कत्ल किया है। किसने कत्ल किया ये भी बात अभी तक सीगा राज में रही है, और क्या खुदकुशी की है, खुदकुशी की वजह भी समझ में नहीं आती। बहरहाल ये एक मुअम्मा है समझने का न समझाना।